नाउ सी आज की क्लास में हम चेंज ऑफ मेथड के डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इलस्ट्रेशन है, इसको मैं आपको समझा देती हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे लिए। क्या क्वेश्चन है? अ फर्म परचेज द वन मशीन फॉर 5 लाख ऑन 1 Jan 2014। नाउ सी दिस। ठीक है, ऑन 2014 अ फर्म परचेज वन मशीन फॉर 5 लाख। एक फर्म ने 5 लाख की, ठीक है, मशीन परचेज की है। प्लीज रिमेम्बर द डेट ऑफ द परचेज। ठीक है, अगर सिंपल आपको ये लाइन नहीं लिखी होती बच्चा, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती कि एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द 5 ईयर, ये लाइन नहीं होती और आपको लिखा होता कि एसएलएम मेथड यूज कर रहे हैं 10% के अकॉर्डिंग, तो आपको 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000 होता है ना। तो 5 लाख का 10% होता है आपके पास 50,000। तो आपने 5 लाख का यहाँ पे 50,000 होता, तो कितना होता आपके पास? 4,50,000 इज द बैलेंस। बट हियर there is an extra line included in the question or given in the question. That statement is with an estimated useful लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है। सो आपको पहले से देखना है कि अब हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन के जो कंसेप्ट से जैसे हम निकालते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। सो a firm purchased one machine for 5 lakh on 1 Jan 2014 with an estimated useful life of 5 years. Here there is no scrap value. ठीक है, here there is no scrap value and that scrap value is equal to the 0. यहाँ पे कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं होती और यहाँ जो स्क्रैप वैल्यू होती है वो क्या? वो 0 गिवन होती है। सो हियर इज द स्क्रैप वैल्यू इज गिवन, दैट इज द 0. सो 5 लाख में से माइनस कर दिया आपने क्या? स्क्रैप वैल्यू, दैट इज 0. तो 5 लाख में से आपने 0 माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 है तो आपने वो माइनस कर दी, डिवाइड बाय आपके पास कितना हो गया? 5 से आपने डिवाइड कर दिया। सो विद एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर। ठीक है, तो आपने 5 लाख माइनस 0 डिवाइड बाय 5, तो कितना हो गया? 1 लाख. सो 1 लाख इज अवर वर्ड, सो 1 लाख इज अवर द डेप्रिसिएशन. ये मैं आपको, ठीक है, डेप्रिसिएशन के स्टार्टिंग में कंसेप्ट समझा चुकी हूँ. सो अवर द डेप्रिसिएशन यानी कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द 2 years. Why for the 2 years? Because here is completely mentioned that after the 2 years the firm decided to change the method of depreciation. So up to the 2 years the amount of depreciation is your the 1 lakh. ठीक है, so up to the 2 years amount of depreciation is your the 1 lakh. ठीक है, on SLM, on the straight line method के basis पे your amount of depreciation is your the 1 lakh. So after the 2 years the firm decided to change the method of depreciation to written down value method. So after the 2 years, 2 साल के बाद, ठीक है, इट मीन्स कि 2 साल के बाद फर्म डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. फर्म ने डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज करने के लिए सोचा. किसमें चेंज करने के लिए सोचा? टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में. ठीक है, after 2 years firm decided to change the method of depreciation to return down value method. So for the 2 year the amount of depreciation is over the 1 lakh. So 5 lakh. ठीक है, here you can write the cash account instead of the bank account, but in the case of the large amount we used to write the bank account. Clear? So here the 5 lakh minus the 1 lakh, that is the 4 lakh, and here is the 4 lakh minus the 1 lakh. ठीक है, 4 lakh minus 1 lakh, that is the balance CD is over the 3 lakh. Now is it clear? So here is the 4 lakh minus 1 lakh, this is the 3 lakh. Now the in next one, after the 2 years, after 2 years the firm decided to change
method of depreciation to return down value method. So after 2 years, please remember that after the 2 years the firm decided to change, convert, ठीक है. So there is a conversion here from the your straight line method to the return down value method, and the rate of depreciation being the 25% per annum. So here the rate of depreciation is over the 25% per annum. Now see, okay, depreciation has been charged on the return down method as a charge of depreciation is effective on a prospective basis. Now see here, क्योंकि यहाँ पर आपको prospective basis के पे requirement है. क्या होता है prospective basis, अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में आगे प्रोस्पेक्टिव बेसिस क्या है वो समझाती हूँ. प्लीज रिमेम्बर दिस. मुझे ये जो क्वेश्चन समझाना था आपको, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन गिवन होते हैं और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, आपको जैसे लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें ऑन द डेट ऑफ द परचेज ऑफ द एसेट्स वी नीड टू एडजस्ट अवर डेप्रिशिएशन. हमें अपने डेप्रिशिएशन को एडजस्ट करना पड़ता था. कहाँ से? हमें अपने डेप्रिशिएशन को एडजस्ट करना पड़ता था यानी कि उनके परचेज के, जो हमने मशीन को जो हमने परचेज किया है, जैसा हमने मशीन को परचेज किया है उस मशीन की परचेज की डेट से हमें उसे चेंज करना पड़ता था. सो इट मीन्स दैट new method would be given effect from the current accounting period. कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि जो न्यू मेथड है, न्यू मेथड के अकॉर्डिंग न्यू मेथड would be given effect from the current accounting period. कह रहे हैं कि करंट अकाउंटिंग पीरियड से हमें न्यू मेथड से यानी कि इफेक्ट गिवन होता था. सो न्यू मेथड वुड बी गिवन इफेक्ट हमें, यानी कि जो भी हमारे पास न्यू मेथड है तो न्यू मेथड को हमें करंट अकाउंटिंग पीरियड से, कि जैसे ये हमारे पास करंट अकाउंटिंग है तो करंट अकाउंटिंग पीरियड से हमें न्यू मेथड को इफेक्ट हम देंगे. ठीक है, तो ध्यान रखना कहाँ से हमें न्यू मेथड देना है, करंट अकाउंटिंग से, जब से वो बैलेंस हमें चेंज करना है. द डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज इन द प्रीवियस ईयर इज कंप्लीटली इग्नोर्ड. याद करो हमने जो लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस न्यूमेरिकल किए थे उसमें हमने यानी कि जब से हमने मशीन परचेज की थी तभी से हमने डेप्रिसिएशन को लगाया है, तभी से हमने डेप्रिसिएशन को चार्ज किया है. बट here depreciation already charged in the previous year, कह रहे हैं but here depreciation already charged in the previous year, कह रहे हैं is completely और totally ignored. क्या मतलब है कि जो पिछले साल से जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रही है, तो बहुत सिंपल मेथड है आपको, यानी कि जो भी पुराने डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट है वो करने की जरूरत नहीं है. बस आपको जब से ये इफेक्ट लग रहा है, जब से आपका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट चालू हो रहा है, तभी ही आपको क्या करना है, उसी न्यू मेथड से ही आपको न्यू तरीके से डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है. मुझे ये समझाना था. आप प्लीज ना सभी म्यूट कर दीजिए, मेरी वॉइस नहीं आएगी फिर आपको. बेटा म्यूट कर दो. ठीक है. So in the simple words, the balance of return down value of the asset on the date of change would be written off during the remaining useful or working life. ठीक है, assets की जब जो remaining और जो useful life है उसके according. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे ये प्लीज ध्यान रखना. It may be noted that after the withdrawal of AS6, हमने क्या किया, हमने एक्चुअल में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा 6 था, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 क्या था, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग. हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को क्या किया, निकाला, हमने उसको विड्रॉ कर दिया. अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग नहीं है, तो इसके बदले में हम क्या लेके आए, इसके बदले में हम इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
10 हम लेके आए थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का इंट्रोडक्शन हम लेके आए थे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दी पोजीशन हैज चेंज, ठीक है, यानी कि हम प्रॉपर्टी लेके आए थे, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, फिर उनकी जो पोजीशन है वो हमारी चेंज हो गई थी। ए कॉर्पोरेट मस्ट चेंज द मेथड विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कहने का मतलब है एक कॉर्पोरेट को प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ मेथड को चेंज करना चाहिए था। कह रहे हैं ए कॉर्पोरेट मस्ट चेंज द मेथड विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नॉट विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ध्यान रखना, अगर आप इस मेथड को प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग, आप प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग आप चेंज करते हो तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को विड्रॉ करना है और आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, आपको उसे क्या करना है, आपको उसे इंट्रोड्यूस करना है। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, इसके अकॉर्डिंग आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, वो सब कुछ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। कॉर्पोरेट मस्ट चेंज द मेथड विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट not with the retrospective effect which has become part of the history, ठीक है। अब आगे आगे क्वेश्चन में देखना, तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है, ये मुझे मेथड इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें हमें इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं निकालनी पड़ती, हमें लास्ट ईयर की कोई भी जो हमारी कैलकुलेशन है उसे निकालने की नीड नहीं है। कहाँ चला गया, एक मिनट, ठीक है। तो हमें जो लास्ट ईयर की है इतनी कैलकुलेशन को निकालने की नीड नहीं होगी, आप यहाँ सिंपल देख सकते हो। तो अब हमने क्या किया, 3 लाख का आप 25% निकाल दो, लेकिन हमने पहले क्या किया था, पहले स्टार्टिंग से हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास लिखा हुआ है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 या आपके पास लिखा हुआ है विद प्रोस्पेक्टिव बेसिस, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के बेसिस पे या आपको प्रोस्पेक्टिव बेसिस के अकॉर्डिंग यहाँ आपके पास कितना आ गया है, तो 1 जनवरी 2019 में बैलेंस बीडी कितना आ गया आपके पास, 3 लाख आ गया। 3 लाख का आपने कितना निकालोगे, 25%, यानी कि 3 लाख का आप 25% निकालोगे, सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बीइंग 25% पर एनम, ठीक है। सो जो डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 25% पर एनम है। सो यहाँ पे आपने 25% पर एनम निकाला, कितना आ गया, 75,000। सो हेयर द एट द एंड में 31 दिसंबर में डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है आपका, 75,000। सो 3 लाख में से आपने 75,000 माइनस किया तो बाय बैलेंस सीडी कितना आ गया आपका, 2,25,000। तो आपके पास जो अमाउंट है वो कितने की आ गई है, 2,25,000। ये बार बार क्या हो रहा है, ठीक है। पहले बताओ इतना तो क्लियर हो गया नहीं, अब आपको दोबारा से वही करना है, इसका आप निकाल दीजिए। आपको इसको देखो क्या लिखा हुआ है, 2,25,000 है, ठीक है। 2,25,000 है, उसका आप देखो कि हमें 2,25,000 का दोबारे से आपने इसमें से निकाल लो 25% एंड देन रिमेनिंग इज अवर द वर्ड, रिमेनिंग इज अवर द बैलेंस। अब अच्छा पहले मुझे बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं है, हो गया ये। नो मैम, क्लियर। नो मैम। नो मैम मैम मशीन तो 2014 में परचेज कर रहे हैं। हाँ मैम, डेट्स। हाँ वो थोड़ा ईयर में गड़बड़ी गिवन है, ईयर में गड़बड़ी है, बाकी सब मैम कुछ 14 कर दे। हाँ 14 कर दो। ओके मैम। उसके लिए ये मैंने भी क्वेश्चन देखा, ईयर में गड़बड़ी है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नाउ
The next question, our next illustration, change of method from straight line method to written down value method. ठीक है, देखो क्वेश्चन में, आप इसे रीड करो एक बार, ठीक है, जिनके पास नहीं है ये प्लीज नोट डाउन कर लो. सो देयर इज अ इलस्ट्रेशन, नेक्स्ट इज द चेंज ऑफ मेथड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. ठीक है, अब देखो, अब हमें यहाँ पे एसएलएम से चेंज कर रहे हैं हमें. अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें इतना ना आपको सिंपली गिवन नहीं है, हर एक चीज एक एक स्टेप में आपको देखनी है क्या क्या आपको गिवन है. समझो पहले क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन. सो गुड लक लिमिटेड परचेज्ड ऑन, कह रहे हैं कि गुड लक लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1 Jan 2017. कह रहे हैं कि गुड लक लिमिटेड ने 1 जनवरी 2017 में परचेज किया. क्या परचेज किया, लिखा है गुड लक लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1 Jan 2017 certain machinery for 1,94,000. ठीक है, यानी कि गुड लक लिमिटेड ने 1 जैन 2017 में मशीन परचेज की. ठीक है, कितने के लिए, सर्टेन मशीनरी फॉर 1,94,000, यानी कि 1,94,000 की मशीन उसने परचेज की. स्पेंड 6,000 ऑन इट्स इरेक्शन, और या फिर क्या लिखा हुआ है उसके इरेक्शन पे कितने, 6,000 क्या कर दिए, खर्च कर दिए. फाइन. ऑन 1 जुलाई, ठीक है, 2017 में एडिशनल मशीनरी हमने परचेज की. ये क्वेश्चन में पता है आपको थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए दे दिया जाता है. ठीक है, उसको थोड़ा टिपिकल बनाने के लिए कि हमने एक न्यू मशीनरी को परचेज किया, हमने फिर एक जो हमारी मशीनरी थी उसे हमने सोल्ड आउट कर दिया, हमने उस मशीन को परचेज किया, ये सब किया. सो ऑन 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 में एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज, कि जो एडिशनल मशीनरी थी जिसकी कॉस्ट 1 लाख की थी वो परचेज किया गया. ऑन 1 जुलाई 2017 additional machinery costing 1 lakh was purchased on 1 जुलाई 2019. ध्यान रखना, यानी 2017 तक, फिर उसके बाद 1 जुलाई 2019 तक मशीनरी परचेज ऑन 1 Jan 2017 हैज बीन ऑक्शन फॉर 1 lakh. ध्यान रखना कि 1 जुलाई 2019 में जो मशीन हमने परचेज की थी, तो क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 जुलाई 2019, यानी कि 1 जुलाई 2019 में जो मशीन परचेज की थी, द मशीन परचेज ऑन 1 Jan 2017, 1 जनवरी 2017 को जो हमने मशीन परचेज की थी, ठीक है, हैज बीन ऑक्शन फॉर 1 लाख. ठीक है, उसे हमने 1 लाख के लिए क्या कर दिया, ऑक्शन कर दिया. तो हैज बीन ऑक्शन फॉर 1 लाख, वही लिखा है. ऑन 1 जुलाई 2019 द मशीनरी परचेज ऑन 1 Jan 2017, कि 1 Jan 2017 पे जो हमने मशीनरी परचेज की थी, हैज बीन ऑक्शन फॉर 1 लाख, उसे हमने 1 लाख में क्या कर दिया, ऑक्शन कर दिया. एंड ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी वॉज परचेज एट ए कॉस्ट ऑफ 1,50,000. कह रहे हैं उसी सेम डेट पे न्यू मशीनरी वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 1,50,000. कह रहे हैं उसी सेम डेट पर ही हमने न्यू मशीनरी परचेज की थी 1,50,000 की कॉस्ट पे. सो ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 1,50,000, यानी 1.5 लाख के कॉस्ट पे हमने न्यू मशीनरी परचेज की थी. डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड एनुअली. ठीक है, डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31 दिसंबर. कह रहे हैं कि 31 दिसंबर को हमने एनुअली डेप्रिसिएशन क्या किया था, प्रोवाइड किया था. सो डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31 दिसंबर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट. ये प्लीज ध्यान देना. ठीक है, अब एक बार स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में देखते हैं, करते हैं. पहले एक बार स्टार्टिंग से ही आप देखिए.
मैम ये ऑक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्शन का मतलब होता है सेलिंग। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, हमने क्या किया, मशीन परचेज की थी, ठीक है, मशीन हमने परचेज की थी तो बैंक अकाउंट 1,94,000। फिर हमने क्या किया, मशीन, क्योंकि जब हम मशीन, एक बात आपको बताती हूँ, जब हम मशीन परचेज करते हैं उसके दौरान जो भी इंस्टॉलेशन का है या कोई भी मशीनरी के कोई भी आइटम का कोई भी खर्चा एक्सपेंस है वो हम इसी में ही ऐड कर देते हैं। सो बाय बैंक अकाउंट दैट इज द 1,94,000, बैंक अकाउंट में 1,94,000 और फिर कितना हो गया है, 6,000 है। तो 1,94,000 और 6,000 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ठीक है, ये हमारे पास एक मशीन की कॉस्ट है। और सेम ही में ही हमने क्या किया, क्योंकि 1 जुलाई को बैंक अकाउंट, हमने एक न्यू मशीन परचेज की, अभी तक मैंने आपको इतना ही समझाया, हमने एक न्यू मशीन थी वो क्या किया, हमने परचेज की, तो कितने की हो गई है, 3 लाख। एट द एंड में यानी 2017 में हमने किया, तो 2017 के 31 दिसंबर 2017 के 31 दिसंबर में, तो क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ठीक है, यहाँ हमारे पास में, अब आप मेथड देख सकते हो हमने कौन से मेथड पे अप्लाई होगा। डेप्रिसिएशन आपका लगाना था यहाँ पे, सिंपल देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एनुअली on 31st December at the rate of 10% per annum on the original cost। ठीक है, इट मीन्स कि हमने कहाँ तक कवर किया, अभी 2019 पर है, इसका मतलब कि हमें 17 और 18 तक हमें सेम अप्लाई करना है। अगर डेप्रिसिएशन चेंज हमें कब करना है वो भी देख लेते हैं, तो 2020 तक, यानी कि हमें 19 तक तो कोई चेंज नहीं है ना, आगे हमें 20 तक कोई चेंज नहीं है, तो हमने सिंपली इस पे स्ट्रेट लाइन, इस पे आपके पास कितने का लगेगा, ये 2 लाख है, ये एक साथ है, 2 लाख पे आप निकालोगे, क्योंकि फुल ईयर का लगेगा आपका 10% के अकॉर्डिंग 20,000 हो गया, लेकिन ये 1 लाख का फुल ईयर पे निकालोगे 10,000, लेकिन ये हमने बीच में लिया है तो कितना हो गया, 5,000। सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट इज अवर 25,000, बैलेंस हमने सिंपली बीडी निकाला। ऐसे आपको क्वेश्चन करने, सोचना है कि हमें चेंज ऑफ मेथड कब से अप्लाई होना है, ठीक है, और हमें कब, हमें कौन सी मशीन परचेज की, सोल्ड की, हमें वो चीजें कब से गिवन है। नाउ इन दिस 2018 में हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है, ठीक है, बाय बैलेंस, ठीक है, सीडी में ये 2,75,000 है। सो हमने यहाँ पर ये 2,75,000 है तो वही हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, टू बैलेंस बीडी कितना आ गया है, 2,75,000। सो 2,75,000 है 2018 में, ये कितना है, 31 दिसंबर है, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट है, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट करना है, रिटर्न डाउन नहीं अडॉप्ट करना जो कि हम इस पर निकालें, हमें स्ट्रेट लाइन मेथड को अडॉप्ट करना है। सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट में, मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बेटा अभी भी ब्रेक हो रही है, अब मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ। मैम नहीं हो रही, नहीं हो रही, प्लीज एक बार आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरा तो हो ही रहा है नेट में, देखना अब तो शायद आ रहे हैं, आप भी अपना चेक कर लो। मैम अब आ रही है आपकी आवाज क्लियर। क्लियर है ना मेरी वॉइस, बेटा आप लोग भी ना, जिसका नहीं आ रहा है वो भी चेक कर लो, यहाँ देखो ये बिल्कुल फुल आ रहा है अब तो। मैम क्लियर है, ओके। सो नाउ डेप्रिसिएशन अकाउंट है, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन मेथड को अडॉप्ट करना था, हम एक एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन मेथड, बोलिए मैम अभी करना है ये? नहीं साथ साथ आप कर तो रही होंगे ना, नोट डाउन नहीं कर रहे बच्चा? मैम खुद करना है, मतलब अभी करें ये? हम कर रहे हैं। हाँ साथ साथ नोट डाउन भी कर रहे होंगे ना, समझ रहे हो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर मैं इतना टाइम लगाऊंगी तो फिर हमारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, हमें सिलेबस भी कवर करना है।
मैं पूछ रही थी, अभी मेरा हो गया ये क्वेश्चन। अच्छा हो गया है ना, वेरी गुड यस मैम। गुड। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका कितना हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी 20,000 है वही सेम, लेकिन यहाँ पे ये हाफ ईयर का था, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ हमें फुल ईयर का निकालना, तो कितना होगा 10,000 होगा, तो कितना होगा 30,000। सो अवर द बैलेंस सीडी इज अवर द 2,75,000 में से माइनस कर दिया हमने 36 यानी कि कितना 30,000, तो रिमेनिंग हमारे पास निकल के आ गया। सो 2019 में तो ये है कि हमारे पास कितना है 2,45,000 है। हेयर इज द यानी कि अवर 2,45,000 है। तो 2019 में फर्स्ट जैन हमारे पास कितना है, टू बैलेंस बीडी इज अवर द 2,45,000। ठीक है, 2,00,000 कितना है 45,000। अब आगे देखते हैं हमें क्या क्या चेंजेस करने 2019 में। नाउ सी ऑन 1 जुलाई 2019 लिखा है कि 1 जुलाई 2019 में on 1st July 2019 the machinery purchased on 1st Jan 2017 has been auctioned for 1 lakh। कह रहे हैं कि जो हमने 1 जनवरी 2017 में जो हमने मशीन परचेज की थी वो हमने 1 लाख में क्या कर दी, ऑक्शन कर दी। तो हैज बीन ऑक्शन फॉर 1 लाख। कह रहे मशीन परचेज्ड ऑन 1 Jan 2017, 1 जनवरी 2017 में जो हमने मशीन परचेज की थी, तो अब हमने वो कब परचेज की थी, 1 जनवरी 2017 में। ये जो हमने मशीन परचेज की थी ये हमने क्या कर दी, ऑक्शन कर दी, सेल कर दी 1 लाख में। ठीक है, तो पहले इस एक मशीन का देखते हैं। ठीक है, अभी मैं आगे नहीं जा रही हूँ, पहले इसी मशीन का देखते हैं, इसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हमने हमें डेप्रिसिएशन क्या करना है, चार्ज करना है। अभी हमें पहले इसी मशीन के रिगार्डिंग चेक करते हैं। सी इन द क्वेश्चन। सो हमने क्या किया, बैंक अकाउंट आ गया क्योंकि हमने सेल किया है। सेल हमारे पास कितने का किया, 1 लाख का किया। अब आप इसमें से निकाल लो, क्योंकि ये तो मैंने दोनों एक साथ मशीन लिए थी। अब मैं उस मशीन की एक्चुअल में वैल्यू कितने की थी ये निकाल लेते हैं। ये 2 लाख है, 2 लाख में से हमारे पास 20 यानी कि 40, तो 1,60,000 हो गया। तो मेरे पास 1,60,000 की मशीन थी, तो 1,60,000 मेरी उसकी बुक वैल्यू 2019 में मेरी उसकी बुक वैल्यू थी 1,60,000। और जो मेरी उसकी बुक वैल्यू थी 1,60,000, ये बैंक अकाउंट था कितने का, 1 लाख का। तो हमारे पास यहाँ पे तो कितना है, 1,60,000 है और 1 लाख है। ठीक है, तो यानी कि 60,000 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह रहे हैं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन के सेल में जो भी लॉस है। ठीक है, तो यानी कि हमें 60,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। वो मैम हाफ ईयर का डिप्रिसिएशन भी लगेगा इसमें 10,000, क्योंकि 1 जुलाई तक यूज हुई है मशीन। वेरी गुड वेरी गुड, हमें इस पे क्या लगेगा, उसका 20,000 का लॉस। डेप्रिसिएशन भी लगेगा। वेरी गुड, वो आप डेप्रिसिएशन यहाँ तक निकाल सकते हो, आगे तक है। ये रहा, ये जो डेप्रिसिएशन हम यहाँ निकाल रहे हैं ना, आप यहाँ पे लिख सकते हो। गुड, तो हमने मैम इस पे मना किया है डेप्रिसिएशन लगाने के लिए। क्यों, जुलाई तक का तो निकलेगा ना, 1 जैन से लेके हमने जब वो मशीनरी परचेज की तब तक का तो निकलेगा डेप्रिसिएशन। मैम क्वेश्चन में लिखा है ना, नो डेप्रिसिएशन बी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ सेल ऑफ मशीनरी फॉर दैट पार्ट ऑफ द ईयर व्हेन द मशीन वाज यूज्ड। ओके, लिखा है तो वेरी गुड। पार्ट देखा ही नहीं, क्वेश्चन अभी आगे नहीं देखा, तभी तो एक बार वेरी गुड रीड करना चाहिए। तो यस नो मैम डेप्रिसिएशन नीड लिखा टू बी है। चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द सेल, तो हमें फिर डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करना। ओके मैम। ठीक है, अब फिर उसमें अब यहाँ देखो न्यू मशीनरी परचेज की थी, अच्छा वो समझ में आ गया ना, उसका 60,000 कैसे आया। तो न्यू मशीनरी वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 1,50,000। एक बार हम एंटायर रीड कर लेते हैं कि ताकि दोबारा दिक्कत ना हो। हमने न्यू मशीन परचेज की है 1,50,000 की, तो
1,50,000 की हमें ये ध्यान रखनी है कि हमने 1 जुलाई 2019 में हमें न्यू मशीन परचेज करनी है, कितने की? 1,50,000 की। ठीक है, सो हमारे पास कितना है इन 2020 में? द कंपनी हैज चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, से। अब यहाँ गिवन है प्रोस्पेक्टिवली, ध्यान रखना, प्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? तभी से ही, हमें पीछे का कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। हमें बैक का करने की जरूरत नहीं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ही हमें क्या करना है? उसे चेंज करना है। सो हमने 1 जुलाई को ये न्यू मशीन परचेज की थी। सेल हमेशा यहाँ आएगा, यहाँ ब्रैकेट में आप सेल लिख लेना, यहाँ ब्रैकेट में परचेज लेना, तो 1,50,000, बाकी 2,45,000 में से 1,60,000 माइनस कर दो, ठीक है। 1,60,000 माइनस करके फिर हमें उस पर डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे, क्योंकि अब तक डेप्रिसिएशन आपका स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना 10 ही आएगा। जो इसकी रिमेनिंग मशीन बची है उस पर 10,000 ही आएगा। और ये जो 1,50,000 है, और इस 1,50,000 में हमने 12 से अलग से कैलकुलेट किया है, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये 1,50,000 है, इस 1,50,000 में हमने ये अलग से एप्लीकेशन चार्ज है, तो कितना आ गया हमारे पास? बाय बैलेंस सीडी ये अमाउंट निकल के आई है, ठीक है। तो ये बैलेंस सीडी है। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ नेक्स्ट हमारे सिंपल गिवन क्या है कि 2020 में 1 जनवरी में टू बैलेंस बीडी 2,17,500 है, ठीक है। अब इसी पे हम यहाँ से मैथड चेंज हो गया हमारा, मैंने एंटायर भी बैलेंस वहां लिख दिया। अब 31 दिसंबर में डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने का हो जाएगा? 15% हो। 2,17,500 का 15% कितना आ गया? वो मेरे पास ये 30,625। ये इसमें हमें डेप्रिसिएशन माइनस के तो कितना आ गया है, ठीक है। बाय बैलेंस सीडी दिस इज द अमाउंट। बताओ ये क्लियर हुआ नहीं? मैम ये 60,000 कहाँ से आया? समझ में नहीं आया। क्या चीज समझ में नहीं आई है? 60,000 आया ना लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। बताइए। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, बेटा ये पहले देखो ना, हमने जो मशीन 1 जैन में परचेज की थी, 1 जैन में जो हमने मशीन परचेज की है, ठीक है, वो हमने सोल्ड आउट किया है ना। तो 1 जैन की हमारी जो 17 में मशीन हमने परचेज की थी, 2 लाख की मशीन थी। अब 2 साल तक वो डेप्रिसिएशन रहा, कितने का रहा? 2020। SLM के अकॉर्डिंग तो 2020 रहेगा, तो 2 लाख में से 1,60,000 कितना आ जाएगा मुझे बताओ? 1,60,000। तो 1,60,000 है। और उस ईयर पे, इस ईयर पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। वो जो 1,60,000 है, ये तो उसकी हमारी वैल्यू निकल के आई है, हमारी कॉस्ट निकल के आई है, लेकिन हमने उसे सॉल्व कर दिया 1 लाख में। तो 60,000 इज अवर द वर्ड, 60,000 इज अवर द लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ओके मैम, आगे सुनो। ना, तो 60,000 इज अवर द वर्ड, 60,000 इज अवर द लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। मशीन पे जो सेल का क्या है, ये मशीन पे सेल का हमारे लिए लॉस है। मैम एक बार और रिपीट कर दो। क्या रिपीट करना है बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट और लॉस पहले मुझे बताओ यहाँ पे कि उस मशीन की कॉस्ट कितनी निकल के आई है, जो मशीन हमने सोल्ड आउट की है। 1 लाख। अरे प्लीज आप सभी म्यूट कर दो।
ये पहले मुझे ये बताओ कि जो मशीन हमें सोल्व करनी है उसकी कॉस्ट कितनी निकल के आई है? मैम 1 लाख। मैम आफ्टर डेप्रिसिएशन। हाँ, डेप्रिसिएशन के बाद 1 लाख तो भैया बेटा मैंने ये सोल्ड किया है। आपको या तो एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाया है तो भी आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? बुक में गिवन है ना कि ये 1 लाख इज माई द सेल अमाउंट। 1 लाख तो मेरी बैंक अकाउंट है, सेल है, सेल किया ये मैंने 1 लाख। 1 लाख इज माई द सेल, सेल माने पैसा आया। और जो चीज आती है वो क्या होगी? क्रेडिट होगी, ना कि डेबिट होती है। तो क्लियर है। मेरे पास क्वेश्चन यही हो गया, बैंक अकाउंट मेरा क्रेडिट हो गया 1 लाख से। मैं ये पूछ रही हूँ कि 2019 में उसकी वैल्यू कितनी थी बुक की? जो जो मशीन मैंने परचेज की है उसकी बुक वैल्यू बताइए। जो मशीन मैंने खरीदी है उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? खरीदी है कि बेची है? जो बेची है मैंने, जिसने मैम मुझसे ये 160 160 थी मैम। 160 उसकी वैल्यू कैसे निकल के आई? 160 निकालो मैम भाई। depreciation 2 कैसे लाख निकाला? इसकी वैल्यू थी, 40,000 डेप्रिसिएशन हो गया 2 इयर्स का। डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो 1,60,000 आ गई। अगर मैम नहीं आ गया। समझ आ रहा लिखो भाई, मेंशन मैम करो, क्लियर लिखो। है। तो मैम क्लियर। 1,60,000 हो गया। तो 1 लाख मैंने उसको सेल किया तो 60,000 इज वर्थ 60,000 इज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। और मशीन पे जो कोई भी लॉस होगा वो हमारे पास प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा। नहीं सॉरी, प्रॉफिट और लॉस के हमारे सॉरी डेबिट में जाएगा, मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट में आएगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, क्योंकि लॉस हमारे जितने भी खर्चे हैं सब हमारे डेबिट होते हैं। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना हो गया? ये डेप्रिसिएशन, ये जो लॉस आया ये है मेरा 60,000। और बाकी जो डेप्रिसिएशन मैंने कंप्यूट किया है वो जो रिमेनिंग मशीनरी है, जो मेरे रिमेनिंग मशीनरी है उस पर मैंने डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया है। आगे सिंपल गिवन है, आगे तो हमारे पास है, हमारे पास आगे प्रोस्पेक्टिव मेथड गिवन है। और इस प्रोस्पेक्टिव मेथड में क्या करना होता है? पीछे का हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, लास्ट का हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, रिटर्न डाउन के हिसाब से 15%, जो हमारी बुक वैल्यू थी, जो हमारे पास आंसर था 2,17,500, इसी का मैंने 15% कंप्यूट किया। तो इसी का जो मैंने 15% निकाला तो वही है डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो बैलेंस बीडी में से डेप्रिसिएशन अकाउंट आप माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? बैलेंस सीडी निकल के आ गया। मैम एक सेकंड क्वेश्चन देखना 9.52 पेज नंबर पे। ठीक है, ये क्लियर हुआ ना? पहले इसमें देख लो, अगर और किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज इतना भी पूछ सकता है, चैट बॉक्स में कमेंट कर दो। हो गया आगे। मैम क्लियर है। ये डेप्रिसिएशन कैसे आया 17,500? ये पूछना चाहते हैं आप? 17,500 डेप्रिसिएशन, देखो सिंपल से क्वेश्चन है। जो मशीनरी बची है अब उस पे निकालोगे ना डेप्रिसिएशन। जो मशीनरी मैंने क्या कर दी? सोल्ड कर दी, उस पे तो आप निकालोगे नहीं। अब एक ये मशीन मैंने परचेज की 1,50,000 की मशीन परचेज की, इसका फुल ईयर का डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? अगर इसका मुझे फुल ईयर का निकालना है डेप्रिसिएशन, आप उसका फुल ईयर का निकालोगे। लेकिन ये हमें
जुलाई में परचेज की, तो आपने इसका 6 मंथ का डेप्रिसिएशन निकाल दिया, एज सिंपल एज दैट। यानी कि आपने 1,50,000 का फुल ईयर का 15,000 10% के रेट से, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे। अब इस पे आपके पास डेप्रिसिएशन निकलेगा 15,000, उसका आपने हाफ कर दोगे तो 7,500 आ गया। अब मेन दिक्कत क्या होती है, आपके पास 7,500 आ गया, फिर अब आप मेन में देखिए, जो इस मशीनरी है हमारे पास 2x 45,000 में से एक मशीनरी फर्स्ट जनवरी वो हमने दी। अब कौन सी मशीनरी है, ये वाली मशीनरी है। आप यहाँ पे M1 लिख सकते हैं, M1 M2 करके करना चाहे कर लीजिए प्लीज, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर जो स्कीम बुक में पैटर्न क्वेश्चन गिवन है उसके अलावा आप करना चाहते हैं M1 M2 करके, सो प्लीज गो फॉर दैट, इससे आपको कॉन्फिडेंसी होगी। अब यहाँ देखो, ये जो मशीन थी 1 लाख वाली, ये मशीन अभी है ना, हमने बेची तो नहीं है, तो इसी मशीन पे हमने क्या निकाल दिया, डेप्रिसिएशन निकाल दिया। तो इसी मशीनरी पे हमारे पास ये 1 लाख का है, तो इसी मशीनरी पे हमने डेप्रिसिएशन निकाला, तो वो कितने का आ गया है, 10,000 का डेप्रिसिएशन है। इसी 1 लाख पे हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया, ठीक है। तो कितने का, 10,000 का, बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना आ गया, 10,000 और 7,500, 17,500 बैलेंस भी, ठीक है। तो हाँ, तो ये हमारे पास अमाउंट आ गया। पहले बताओ क्लियर था? यस मैम। यस मैम। ठीक है, समझ में आया। चलिए आज की हमारी क्लास के लिए तो